اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ کرسی کی پشت پر بندھے تھے۔ فائنلی یہ وہی کا کانوں میں سرد آواز پڑی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے ہی وہ شخص بہت اطمینان سے کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہ آیا یہ سب اس شخص کا کیا دھرا ہے، یعنی اس کا شک درست تھا۔ آپ آپ نے اغوا کیا مجھے؟ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، میں نے ہی اغوا کیا۔ جواب اس قدر ٹھنڈے لہجے میں دیا گیا کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یعنی آپ نے ہی میری دوست کو؟ اس سے جملہ مکمل نہ ہو سکا تھا۔ آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی مگر وہ ویسے ہی پرسکون بیٹھا تھا۔ کیوں کیا اس کے ساتھ؟ ایسا؟ بولو، جواب دو۔ نفرت سے وہ چیختی رسی اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی جب اس شخص نے اس کا چہرہ سختی سے دبوچ لیا۔ ایک لفظ نہیں، ایک لفظ نہیں سمجھ آئی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ساکن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ بالکل پتھر کی ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا جھوٹ، کتنی بے وقوف تھی وہ جو جان ہی نہ سکی۔ وہ تینوں خوف سے کار کے چاروں طرف گن تانے آدمیوں کو دیکھ رہی تھی جب ایک لڑکے نے اس کی طرف کا شیشہ بچایا۔ نہیں بھائی، پلیز مت کھولیں۔ اسے شیشہ کھولتے دیکھ برابر میں بیٹھی لڑکی اس کا ہاتھ تھام گئی مگر لڑکے نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور شیشہ کھول دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا راستہ کیوں روکا؟ ناگواری سے بولا۔ جب تک یہ تینوں ساتھ تھیں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھ، ہمیں بس یہ پیچھے لونڈیا چاہیے، شرافت سے اسے ہمارے حوالے کر دے۔ اسلحہ بردار کی بات پر دونوں لڑکیوں نے بے یقینی سے اسے پھر لڑکی کے لٹھے کی مانند سفید چہرے کو دیکھا جو بس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہاں ہو کون تم لوگ؟ وہ دھاڑ اٹھا۔ اوئے، زیادہ ہیرو بنا نا تو یہی ساری گولیاں تجھ میں اتار دیں گے اور پھر ایک کی بجائے 3 لے کر جائیں گے۔ اس کے سینے پر گن رکھ کر تینوں پر نظر ڈالی۔ تینوں کی چیخیں نکل گئی۔ ٹھیک ہے، تم اس کو لے جاؤ اور ہمیں جانے دو۔ چند لمحے بعد اس لڑکی کی آواز کار میں گونجی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ پیچھے بیٹھی لڑکی ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دونوں ہی سکتے کی کیفیت میں تھیں جب لڑکے نے اس لڑکی کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور ایک نظر اسے دیکھا جو پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہ تھا ان دو نین میں۔ وہ فوراً نظریں پھیر گیا۔ ایک اسلحہ بردار نے کہا لگاتے جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچا۔ وہ دونوں لڑکیاں چیخ پڑی تھیں مگر اس لڑکی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تھا۔ بس ایک آنسو ٹوٹ کر دوپٹے کے ساتھ زمین پر گرا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ لڑکے نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ بیوی ہے وہ آپ کی۔ برابر میں بیٹھی لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے پاگل ہوتی نم آنکھوں سے چیخ اٹھی تھی جبکہ پیچھے بیٹھا وجود جو پہلے ہی ساکت تھا اس کی بات پر پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ بیوی؟ بہت ہلکے سے اس کے لب ہلے تھے اور ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل گیا تھا۔ تبھی اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کی۔ پیچھے سے اب جیپ ہٹ چکی تھی۔ یا اللہ، کس منوس کی شکل دیکھ لی آج۔ ہمارے اپارٹمنٹس میں تو بلی بھی نہیں ہے۔ غصے سے بڑبڑاتی کار سے نکلی۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ کب سے اسے راز و نیاز میں لگے ہو، کچھ کرو بھی تو صحیح۔ جھنجھلا کر بولی تو مکینک نے بیزاری سے اس کی آلٹو کو دیکھا۔
देखो दानेन बाजी, या तो इसे छोड़ दो या रुखसत कर दो, क्योंकि इसका अब आपके साथ गुजारा नहीं है। मकैनिक के मुखलिसाना मशवरे पर वो तब कर रह गई। जो काम है वो करो, मेरे एडवाइज़र बनने की ज़रूरत नहीं, समझे? नाक चढ़ाकर बोली। वो एकदम सीधा होकर अपना काम करने लगा। अपनी प्यारी सी कार को देखने लगी जो हसन साहब ने उसे अपने इंतकाल से पहले दी थी, और पिछले 2 साल से एक पक्की दोस्त की तरह इसका साथ भी निभा रही थी। जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। टाइम देखकर टेंशन होने लगी। मामा की तबीयत की वजह से एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, और आज भी लेट पहुंचती तो मारिया उसे जिंदा नहीं छोड़ती। एक्सक्यूज मी। एक सूटेड बूटेड शख्स वर्कशॉप में दाखिल हुआ तो मैकेनिक एकदम सीधा होकर इसके पास भागा। जी साहब जी, मुअद्दब से बोला। उसने सड़ा हुआ मुंह देखा। दुर फिटे मुंह, छोटी सी लेकिन मैं भी तो कार में ही आई थी। एक नज़र सामने खड़े शख्स की लैंड क्रूजर पर डालती बड़बड़ा कर रह गई। कार में कुछ इशू हो रहा है, चेक करो, वापसी पर सर्विस के लिए दे दूंगा। उस शख्स की बात में मैकेनिक बोनट इसकी कार का बोनट खोलने लगा। इसका तो पारा ही चढ़ गया। ओ हेलो, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, मेरा काम करो पहले, समझे? दंदनाती हुई इसके सर पर जा पहुंची। उस शख्स ने एक नज़र इस पर डाली। येलो टॉप और ब्लू जींस पर छोटा सा वाइट स्टोल डाले, शोल्डर कर बालों की ऊंची पूर्णी बनाए, अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे मैकेनिक को घूर रही थी। मैकेनिक एकदम गड़बड़ा गया। बाजी बस 2 मिनट, इनका काम कुछ भी नहीं है। उसने रिक्वेस्ट की, मगर उसने मजीद गुस्से से घूरा। पहले मैं आई थी, मेरा काम करो। गुस्से से बोली तो वो शख्स भी अपना मोबाइल रखकर इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। लुक मिस, मेरी गाड़ी में कोई ऐसा इशू नहीं है, बस 2 मिनट की बात है, प्लीज़। रिस्ट वॉच में टाइम देखकर तहम्मुल से बोलता। इसे सख्त जहर लगा। 1 सेकंड का भी क्यों ना हो, पहले मैं आई हूँ, समझ आई? जाओ काम करो अपना। इससे मुखातिब होते मैकेनिक को घूर के बोली तो उसे माजरत करता दानीन की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने एक नागवार नज़र इस पर डाली। मिस, अब 2 मिनट वेट नहीं कर सकती, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, जब से बोला। दानियल ने हैरत से उसे देखा। तो आपको क्या लग रहा है, मैं इतनी सुबह सुबह कार ठीक करवा कर बकरियां चराने जाऊंगी? मुझे भी अर्जेंटली जाना है। अर्जेंटली पर जोर देते एक तमस्खराना निगाह उसकी चमचमाती लैंड क्रूजर पर डालकर अपनी कार की जानिब मुतवज्जो हो गई। पता नहीं क्यों, वो शायद इस अनजान शख्स की हसीन कार से जेलस हो गई थी। इडियट। बड़बड़ाता हुआ कार का डोर खोलने लगा, मगर दानियल हसन के तेज कान पर ये लफ्ज सुन चुके थे। खुद होगा, इडियट, पागल कहीं का। जोर से बड़बड़ाती कार में बैठी जिसे मैकेनिक ने स्टार्ट करने को कहा था। इस शख्स ने पलटकर इस बदतमीज लड़की को देखा। वो अभी इसकी गुलफशानी सुन चुका था। इल मैनर्ड, वो सजब करते चपड़े भींच कर रह गया। तकरीबन 25 मिनट की मेहनत के बाद दानैन की कार स्टार्ट हुई तो वो खुशी से झूम उठी। देखना तुम अब 2-3 महीने तक मेरी गाड़ी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगी, समझे? कार वर्कशॉप से बाहर निकालते मैकेनिक से बोले तो वो तंजिया मुस्कुराता इस शख्स की कार के पास आया जो तुर्श नजरों से उसे देख रहा था। वो गड़बड़ाता बोनट पर झुक गया। हसन साहब की 2 औलादें थीं, 3 साल असद और 22 साल दानैन। असद जो शादी के कुछ अर्से बाद ही जॉब के सिलसिले में बाहर चला गया था, जबकि माहीन और 4 साल बेटा इबाद दानैन और सबरूही बेगम के साथ एक खूबसूरत से अपार्टमेंट में रहते थे। दानैन की बीबी का तीसरा साल था, जो इसके मुताबिक इंतहाई सुस्त रफ्तार में गुजर रहा था। ये जैद आया आज? क्लास में बैठी टीचर का इंतजार करती दानियल ने मारिया से पूछा, जो पूरी यूनी में इसकी वाहिद बेस्ट फ्रेंड थी। यह जैद था इसका फाइनल ईयर में। तुम एक हफ्ते से नहीं आ रही थी, बोर हो गया होगा, हंसते हुए बोली। उसने घूर कर उसे देखा। वैसे आंटी की तबीयत कैसी है अब? अपने रजिस्टर निकालने पर पूछा तो वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ठीक हो गई। भाभी ने ही कहा था कि यूनी जाओ अब। बैग की कीचेन से खेलते बोली। इस वक्त क्लास की लास्ट रो में बैठी बातों में मगन थी। इसकी शुरू से क्लास के सबसे आखिरी चेयर पर बैठने की आदत थी। इसका मानना ये था कि दूर से बैठकर हम ज़्यादा तवज्जो से पढ़ सकते हैं। यार, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई। अकाउंट्स के सर तैमूर के बारे में। क्या बंदे हैं यार। खोई खोई लहजे में बोली तो दानियल ने हैरत से उसे देखा। क्या पागल वागल तो नहीं हो गई? ये बुड्ढों में कब से इंटरेस्ट लेने लगी तुम? हंसते हुए बोली। मारिया ने इसके कंधे पर हाथ मारा। दफा हो, अभी तुमने देखा ही नहीं, इसीलिए बोल रही हो। एक हफ्ते से धूम मची है इसके लुक्स की।
اور کیا پڑھاتے ہیں یار، امیزنگ! پرجوش انداز میں بولتی تو اس نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ سر مدثر نے تو بیٹا نہیں بھیج دیا اپنا؟ چھیڑتے ہوئے اسے ایک آنکھ ماری۔ ماریا کا کڑوا سا منہ بن گیا۔ دفعہ ہو! کہاں وہ گنجا سر! بندہ پڑھائی سے اکتا جائے اور ان کے آگے تو ہر کوئی خود بکس کھول کر بیٹھ جائے۔ تصور میں انہیں سوچتی ہوئی وہ بولی۔ اب اسے بھی تجسس سا ہونے لگا جب یہ وائٹ شرٹ پر انڈیگو ٹائی اور بلیک ڈریس پینٹ میں سر تیمور اپنی وجہ شخصیت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے تھے۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس! اپنی گمبھیر آواز میں کہتے روم پر جا کر کھڑے ہوئے۔ چند ایک لڑکوں کے سوا سب نے پرجوش انداز میں جواب دیا، جبکہ وہ ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا۔ کہا تھا نا ہوش اڑ جائیں گے، فخری انداز میں بولی۔ دانین کا اسی وقت سکتہ ٹوٹا تھا۔ یا اللہ، یا تو اس شخص کو اندھا کر دے یا مجھے ہی غائب کر دے۔ تھوڑا سا جھک کر اسٹوڈنٹس کے سروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی دعائیں کر رہی تھی۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پاگل تو نہیں ہوگی انہیں؟ نہیں اٹھو، کیا بول رہی ہو؟ دھیرے سے سرگوشی کی۔ پلیز ماریا، آج کی میری ایبسنٹ لگوا دو، میں لنچ کرواؤں گی تمہیں، گھبرا کر آہستہ سے بولی۔ اب اس وقت اسے کیا کہانی سناتی اس لینڈ کروزر والے شخص کے بارے میں؟ سائلنس پلیز! ناگواری سے ماریا کی طرف دیکھا تو وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ دانین بیبی کی اسٹوڈنٹس کے سروں کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ کلاس میں اب اٹینڈنس لی جا رہی تھی۔ رول نمبر 38! سر اٹھا کر پوری کلاس کی جانب دیکھا، کیونکہ پریزنٹ یا ایبسنٹ کی پکار اب تک نہیں آئی تھی۔ اس نے ماریا کو گھورا جو بنی بیٹھی تھی۔ رول نمبر 38! اس پر سخت آواز میں کہا گیا۔ پریزنٹ سر! دانین نے چھپے چھپے آواز لگا دی۔ سر نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر رول نمبر 38 نظر نہ آیا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنا روح سخن ہمیں دکھا سکتی ہیں؟ طنزیہ لہجے میں بولا گیا جہاں پوری کلاس کے کہکہے ابلے تھے۔ وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ تمہیں تو بتاتی ہوں میں۔ ہیلو سر! دانت پیس کر ماریا کو گھورتی آدھا سر نکال کر سامنے کھڑی مصیبت کو دیکھا۔ مس دانین حسن، اسٹینڈ اپ! اس پر لہجہ تکرخ تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوتی اپنا چہرہ گردن میں گھسا گئی۔ اس کی حرکت پر انہیں شدید غصہ آیا تھا۔ کم ہیئر! اس کے جھکے سر کو گھور کر بولے تو وہ جلد تو کرتی مرے مرے قدموں سے ایک ایک سٹیپ اترتی نیچے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ کیا آپ ہم سب کو بتانا پسند کریں گی اپنے آپ کو چھپانے کی وجہ؟ کرختگی سے بولے۔ وہ کڑ کر رہ گئی اور ایسا سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو اٹینڈنس رجسٹر چیک کر رہے تھے۔ یہ کس خوشی میں اتنی چھٹیاں؟ سر اٹھاتے اس سے پوچھا، مگر اس کی شکل دیکھی باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ آنکھوں میں یکدم ناگواری سمٹ آئی تھی۔ سر وہ میری ماما بیمار تھیں۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر لب کاٹتی دھیرے سے بولی، جبکہ سر تیمور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا حشر بگاڑ دے۔ کل تو مجھے اکاؤنٹس کا تمام وقت کمپلیٹ ملے گا۔ آپ کا؟ اسے غصے سے دیکھتے آرڈر کیا تو وہ یکدم گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ سر میں ایک ہفتے کا کام آج کیسے کروں گی؟ حیرانگی سے بولتی سر نے طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ بکریاں چرانے سے اچھا ہے آپ پڑھائی پر کنسنٹریٹ کر لیں تو 100% کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو مسخرانہ نگاہ ڈالتے روم کی طرف بڑھ گئے۔ پوری کلاس ایک بار پھر ہنس دی، جبکہ وہ اس کی پشت پر ایک ترش نگاہ ڈالتی پیر پر ٹکتی ہوئی جگہ پر آ گئی۔ سارے دانت توڑ دوں گی اگر یہ حسینہ بند ہوئی تو، پھاڑ کھانے کے انداز میں کہتی تو ماریا بھی سیدھی ہو گئی۔ پھر سارا وقت عدم توجہ سے بیٹھی رہی جبکہ وہ اپنے جینیس سٹائل میں پڑھا کر نکل گئے تھے۔ ہر سال یہ گینگ 500 سے زیادہ لڑکیاں اسمگل کرتا ہے اور میں لڑکیوں کے فلمز بلیک مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ تراشیدہ مونچھوں اور ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وجیح چہرے پر سخت تاثرات لیے میٹنگ ہال میں فل سائز اسکرین کے آگے کھڑا تمام ہیڈز اور ممبرز کو بریف کر رہا تھا۔ 2 سال سے یہ دناتے پھر ہیں اور ان کا لیڈر ہاتھ نہیں لگا اب تک۔ ایک بریگیڈیئر نے ناگواری سے اسکرین پر آتی گینگ کے غنڈوں کی تصویروں کو دیکھ کر
कहा तो इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। डोंट वरी सर, ये हमारे दिल पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द इनके गिरेबान हमारे हाथों में होंगे। पुरअज़्म लहजे में बोला तो उन्होंने नासमझी से इसे देखा। क्या मतलब मेजर बालाज? दूसरे कमांडो ने भी हैरानगी से पूछा। दोनों हाथ टेबल पर रखकर हल्का सा झुका था। सर कराची मुस्कुराकर बोला तो मेजर सारंग स्मिथ सभी मुस्कुराकर सरस बात में हिला गए। बहुत शातिर गैंग है। बहुत मासूम घरानों को उजाड़ा है इसने। नफरत भरे लहजे में बोले। इंशाल्लाह सर, अब इनके अंजाम का वक्त करीब आ गया है। ऑल द बेस्ट मेजर बालाज। कैप्टन फारिया और मेजर सारंग आपके साथ इस मिशन में आपके साथ होंगे। उन्होंने उठते हुए कहा था तो अब सब ही अटेंशन होकर खड़े हो गए। वो लोग इससे पहले भी कई मिशन साथ कर चुके थे। मुझे यकीन है आप अपने वालिद ब्रिगेडियर जुल्फ़िकार की तरह वतन का नाम मज़ीद रोशन करेंगे। इसकी अज़्म देखकर हर कोई इसके बाप की ही मिसाल देता था, जो इसके लिए काबिल फ़ख्र थी। इंशाल्लाह सर, मज़बूत लहजे में कहतानी लोगों के बारे में सोचने लगा। इस्लामाबाद आए 2 दिन हो गए थे और वो अब तक मेस में ही था। तो फिर कब रवाना हो रहे हो कराची? इसके सवाल पर बालाज ने एक नज़र फारे और सारंग को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। इन दोनों की मंगनी की शाम। मुस्कुराकर अब इनकी जानिब देखा तो सब ही मुस्कुरा दिए। यार क्या पैरों में पहिए लगा लिए, रुको तो सही। मारिया भागते हुए उसके पास आई, जो तेज कदमों से कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी। अपनी मनहूस शक्ल भी मत दिखाना, निकलो यहाँ से। गुस्से से अपना बैग उसे दे मारा। आई एम सॉरी, मैं कैसे बोलती है सिंध, इनके सामने मेरी तो क्या सबकी बोलती बंद हो जाती है। अपना बाजू सहलाती धीरे से बोली। दानियल ने एक तुर्श नजर इस पर डाली। क्यों, वो हैं कौन? प्रिंस हैं या डॉन है जिनके सामने सब कांपने लगी? हाँ बोलो। झुंझलाती हुई कंटीन में घुस गई। वो मुझे नहीं पता, बस तुम ये बताओ छुप क्यों रही थी? इतना बड़ा थोबड़ा भी नहीं है तुम्हारा। हंसते हुए मजे से बोली। दानियल ने जोर से अपना पाँव इसके पाँव पर मारा और बर्गर लेकर एक टेबल पर बैठ गई। जब मुंह खोलना बकवास ही करना। मेरा थोबड़ा यूं नहीं आने से पहले तुमने देख चुके थे, और वो और अपने दिलो दिमाग में ऐसे चिपकाया कि नजर आते ही बदला भी ले लिया। दांत पीस कर कहती सुबह वाला वाकया इसकी गोश गुजार गई। दुख तो इस बात का था कि एक हफ्ते का काम एक दिन में कैसे करेगी। इसकी कहानी सुनकर मारिया खिलखिला कर हंस पड़ी थी। या अल्लाह नैनी, पूरी फिल्म तुम करवाने देती इन्हें पहले सर्विस। हंसते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। क्यों, मैं वहाँ पिकनिक मनाने गई थी, मुझे ये यूं नहीं आना था क्या? वरना तो हर जगह लेडी फर्स्ट के नारे लगाते फिरते हैं। यहाँ जब लेडी, नहीं मेरा मतलब है गर्ल पहले ही आई थी तो इन्हें क्यों करवाने देती? तब कर बोली, जबकि वो इसके इतने लंबे लेक्चर पर सरनफी में हला गई थी। मैम हमारा से मिलना है, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। मेरे बर्गर और चटनी को टच भी मत करना। उसे वार्न करती अपना बैग उठाकर कैंटीन से निकल गई। दिल में मंसूबा बना चुकी थी मारिया को घर ले जाने का, क्योंकि इसके हाथ नाजुक से इतना सारा काम तो वो कर नहीं सकते थे। कॉरिडोर से गुजरते इनके रूम की तरफ आई तो सर तैमूर को इनके रूम से निकलता देख इसके पहियों में एकदम ब्रेक लगा। वो भी उसे देख चुके थे। नजरें नीचे किए रूम की जानिब बढ़ने लगी। क्या कर रही हैं आप यहाँ? उसे रूम की जानिब बढ़ता देख सख्त लहजे में इस्तफसार किया। दानिया ने हैरत से इन्हें देखा। डांस? सर बुलाया था मैम ने। दिल में आया तो कह दे। मगर फिर सादगी से बोली, ये क्लास का टाइम है शायद आपकी। रिस्ट वॉच को देखते हुए नागरवारी से बोली। दानिया ने दांत पीस कर इन्हें देखा। हाँ, मैनेजमेंट का पीरियड है। जिनकी टीचर मैम अमारा हैं और मैं इनके ही रूम में जा रही थी। इसकी तफ्तीश पर बाजू लपेट कर तफसीली जवाब दिया। उन्होंने सख्ती से अपने जबड़े भींच लिए। जाऊँ अब मैं? इनके चेहरे पर फैले नागवार तासुरात को नज़रअंदाज करते मासूमियत से इजाज़त मांगी, मगर वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गए। लगता है इससे पहले स्कूल टीचर थे। हंसते हुए मैम की इजाज़त पर रूम में दाखिल हो गई। लम से जाना फिशारे जहाँ बारिश, जख्मी ताज़ा की राजदा बारिश, टूट कर बरसे तेरे दियाद के फूल, फिर हुई रात नागहां बारिश। एक नए कुर्ब का प्यासा है वजूद, एक नए ख्वाब का जहां बारिश।
اسلام آباد کا موسم ویسے تو 12 مہینوں ہی خوشگوار رہتا تھا، مگر جب چھٹیوں پر وہ گھر آتا تھا تو لگتا تھا خدا کا خاص کرم ہوتا تھا۔ مگر یہ بے وقت کی بارش ہمیشہ ہمیشہ اس کا موڈ برباد کرنے میں پیش رہتی تھی۔ ابھی ڈی ایچ اے فیز 2 یعنی اپنی رہائش گاہ سے وہ کچھ ہی دور تھا جب تیز بارش نے اس کی بائک پر آنے کی اور سارم کی بات نہ ماننے کی سزا دے دی تھی۔ سلام بالاج بابا۔ چوکیدار نے اس کے بگڑے ہوئے موڈ کو نظر انداز کرتے مین گیٹ کھول کر سلام کیا تو بالاج نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ اللہ کا واسطہ ہے بہادر خان، سلام تو پورا کیا کرو، سلامتی بھی کنجوسی سے بھیجو گے؟ اپنی ہیوی بائک کو اندر لاتا ہوا تب کر بولا تو بہادر بھی مسکرا دیا۔ بالاج بابا، بیگم صاحبہ گھر پر ہی ہیں اور آپ کو اس طرح بھیگا دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ اس نے ڈرانا چاہا تو بالاج ذوالفقار ماں کی محبت پر مسکرا دیا تھا، حالانکہ وہ اس کے مشنز کے بارے میں جانتی تھی۔ فوجیوں کو برف پر سونے اور آگ سے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ معمولی سے قطرے ان جوانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن یہ ماں کے دل کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ ہاں جانتا ہوں، گزرے 3 ماہ میں پریپیئر کر کے آیا ہوں خود کو ان کی ڈانٹ کے لیے۔ اس کو بائک کی تھماتا اندر کی جانب بڑھ گیا، زوردار آواز میں سلام کیا، مگر لاؤنج میں صرف اس کی چھوٹی بہن ہی بیٹھی تھی جو بڑے انہماک سے مووی میں مگن تھی۔ رودی، چڑھ کر اسے پکارا تو رودابا نے حیرت سے سامنے بھیگے کھڑے بھائی کو دیکھا۔ میجر، مام میجر آ گئے! چراتی ہوئی اٹھ کر ان کی جانب بڑھی تو گود میں رکھے پاپ کارن خوشی سے فرش کو بوسا دے گئے۔ میجر کتنے دن بعد آئے ہیں، میں آپ کو بہت مس کیا، اس کے گلے کا ہار بنتے ہوئے بولی۔ بالاج نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ I missed you too, sweetheart، پیار سے بولا۔ اتنے میں جواریہ بیگم اور ذوالفقار صاحب بھی نیچے آ گئے تھے۔ یا اللہ، بالاج تم تو پورے بھیگ گئے ہو، جویریہ بیگم قریب آ کر فکر مندی سے بولی۔ رودابا آنکھیں گھماتی اس سے الگ ہوئی۔ یار موم، بھائی بھیشن برف میں سوئمنگ پول بنا کر انجوائے کرتے ہیں اور ایک آپ ہیں، چڑھ کر بولتی باپ بیٹا ہنس پڑے تھے، جبکہ جویریہ بیگم نے اس کی کمر پر چپت لگائی۔ زیادہ بکواس نہ کرو، کپڑے بدلو جا کر، گھور کر بولی، کیونکہ وہ بھی بھائی سے گلے لگنے کے چکر میں بھیگ چکی تھی۔ کتنے دن بعد آئے ہو؟ اسے دیکھتی روٹ کر بولی۔ وہ ہلکے سے مسکراتا ہوا ان کے گلے لگ گئے۔ بہت مس کیا ہے آپ کو وہاں، ماں کی خوشبو محسوس کرتا ہوا بولا تو اس کی حرکت پر وہ بھی مسکرا اٹھی۔ اپنی ماں کو بھی گیلا کر دیا، جاؤ برخوردار فریش ہو جاؤ جا کر، ذوالفقار صاحب نے ٹپٹتے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا ان سے الگ ہوا۔ بھوک بھی بہت لگی ہے موم، یار 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کر ہی کھلا دیں۔ باپ کو آنکھ مار کر مظلومیت سے طاری کی جو جویریہ بیگم نے فکر مندی سے دیکھا۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں بنا دیتی ہوں۔ ذوالفقار، آپ پوچھیں ذرا ہیڈ سے کہ کیوں بھوکا رکھنا شروع کر دیا ہے؟ عجلت میں کہتی اٹھی تو لاؤنج میں باپ بیٹی اور بالاج کا جاندار کہکہا گونجا۔ وہ ایسے ہی تھی، سب کی حد سے زیادہ فکر کرنے والی اور اولاد کے لیے جان دینے والی۔ خشمگین نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ نہ کہنا آپ دوبارہ کسی مشن پر جا رہے ہو، گھور کر کہتی اس کے سامنے چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی۔ نہیں، ابھی میں یہی ہوں، 1 ہفتے بعد جانا ہے۔ فرائیڈ رائس سے انصاف کرتا اطمینان سے بولا تو عدن خاموشی سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ کیا ہوا، کھاؤ، ٹیسٹی ہے؟ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ اس وقت وہ منال میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ سارم کی طرح عدن بھی اس کی کالج ٹائم سے فرینڈ تھی، جو اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ وہ سب سے مختلف تھی، ہمیشہ اس کو سپورٹ کرنے والی، ہر بات میں اس کی بات کو ترجیح دینے والی۔ اپنے بارے میں اس کی فیلنگز جانتا تھا وہ، اور قدر بھی کرتا تھا۔ وہ بورڈ نہیں تھی کہ بے دھڑک اپنے جذبات کا اظہار کر دیتی، اور بالاج کو اس کی یہی بات بہت پسند تھی۔ لیکن ابھی اس کی زندگی میں شادی کی گنجائش نہ تھی، اسے اپنے خواب پورے کرنے تھے جن کے بارے میں عدن بخوبی آگاہ تھی۔ اور یہ 1 ہفتہ رکنے کا احسان بھی کیوں کیا؟ تب کر بولی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ فارغ اور سارم کی انگیجمنٹ کی وجہ سے رکا ہوں۔ لب کا کونا دبا کر مسکراہٹ روکتا اسے دیکھنے لگا۔ بلیو ٹاپ پر ریڈ اپر ڈالے تپی تپی سی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایک نظر ڈال کر نظریں پھیر گیا۔ میں خواہ خواہ خون جلانے آئی ہوں یہاں؟ غصے سے اٹھی تو بالاج نے یکدم ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عدن،
बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की बच्ची लग रही हो। बैठ जाओ यार। हंसते हुए बोला, मगर इसकी नजरें तो अपने हाथ पर थी, जो कुछ देर पहले इसके हाथ में था। दिल तेजी से धड़कने लगा। एक नज़र उसे देखकर मुस्कुराती हुई वापस बैठ गई। ऐसा लगा इस शख्स ने कोई मंत्र फूंक दिया हो। हिजर ना आसूद की मचले तो मनाए न मने, जब कोई बात बनाए न बने। कब कोई बात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी सुनसान स्या रात चले। पास रहो मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो। जी नहीं, ज़्यादा फजूल ना बोलो। नजरें झुकाकर अपनी ब्रेसलेट से खेलने लगी। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? सारम के मैसेज चेक करते एक नज़र उसे देखा जो कुछ गुमसुम सी लग रही थी। हम्म, ठीक है, सादगी से बोलती खाना खाने लगी। इसकी ज़रा सा तवज्जो पर दिल का मौसम खुशगवार हो गया था। फरागत से बचने के लिए वो आजकल आर्मी स्कूल में टीचिंग कर रही थी। तो तुम आ रही हो ना मंगनी पर? उठते हुए उससे पूछा। दोनों डिनर कर चुके थे। हाँ, फारिया तो एक दिन पहले आने का कह रही है, मुस्कुराते हुए बताया। वो भी सर हिलाता इसके पीछे ही चल पड़ा। सारम और बालाज की वजह से इसकी भी फारिया से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और अक्सर एक दूसरे के घर भी पाए जाते थे। भाभी, मुझे लगता है भाई हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। किसी सोच में गुम सोए हुए इबाद के बालों में हाथ फेरती हुई बोली। ऐसा क्यों कह रही हो? माहीन ने हैरत से उसे देखा। तो आप खुद ही बताएं, 2 साल हो गए इन्हें आए, कितनी बदल गई होंगी इनकी शक्ल। आपको तो फिक्र ही नहीं होती। उसने परेशानी से कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नैनी, पागल हो तुम? वो कोई टीनेज में गए हैं जो अब शक्ल बदल जाएगी? इसकी कमर पर हाथ रख मार कर बोली। देख ले, मैं बता रही हूँ, वो हमें मिस नहीं करते। कल से अब तक कॉल भी नहीं की। अपना कंधा सहलाकर गुस्से से बोली। तो क्या हर घंटे फ़ोन करे पागल लड़की? अभी मामा ने सुन लिया ना, तुम मुझे भड़का रही हो। अच्छी खासी क्लास हो जाएगी। लब का कोना दबाती बोली। उसने चिढ़ कर उसे देखा। क्लास तो तब हो ना जब आप भड़कें। यहाँ तो चिंगारी भी उठती नजर नहीं आती। अपनी लटों को कान के पीछे अड़सती बेजारी से बोली। वो मुस्कुराकर नफी में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। जब ही इसका मोबाइल बज उठा था। लो, खुश हो जाओ, आ गई तुम्हारे भाई साहब की कॉल। असद कॉलिंग दिखाया तो दानिश जल्दी से इसके पास आई और फ़ोन रिसीव करके स्पीकर पर कर दिया। कुछ भी पहले बोलने से पहले ये सोच लीजिएगा कि फ़ोन स्पीकर पर है। इसके बोलने से पहले ही वार्न किया। माहिन ख्वामख्वाह ही सुर्ख पड़ गई। तो मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। अपनी बीवी को बेधड़क तुम्हारे सामने आई लव असद। असद के बोलने से पहले ही माही ने चीख कर तंबी की तो दोनों बहन भाई कहका लगाकर हंस पड़े। भाई, ये भाभी ना बहुत भोली हैं, तभी आप अब तक वलायत में टिके हैं, उसने हंसते हुए कहा। तो माही ने जोर से उसकी चुटकी दी। वो बस सीख करके रह गई, जबकि असद मुस्कुरा दिया था। यार, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम सबको। बस सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान आ जाओ, मोहब्बत भरी आवाज़ में बोला तो दानीन ने माहीन को देखा जो कुछ खामोश सी हो गई थी। वाह भाई, ये की ना भाई वाली बात। अब अपनी बीवी को संभाले, कुछ सेंटी सी हो गई हूँ। मैं खाना खाने जा रही हूँ। मुस्कुराकर माहीन को फ़ोन थमाया जो उसे ही घूर रही थी। इंजॉय करें, हंसती हुई उसे छेड़कर कमरे से बाहर निकल आई। भूख उसे वाकई बहुत लगी थी। माँ को ढूंढती किचन में आ गई। मामा प्लीज़ कुछ दे दें खाने को, वरना आपकी बेटी यहीं गिर कर बेहोश हो जाएगी। चेयर पर बैठती टेबल पर सर गिरा गई। सबूही बेगम ने गुस्से से एक नज़र बेटी को देखा। तो क्यों नहीं किया लंच? खाना गर्म करती डपट कर बोली तो वो खुद पर बीती एक बार फिर याद आने वाली। कैसे खाती? वो हिटलर डंडा लेकर खड़े हैं कि कल ही कम कंप्लीट चाहिए। अब थोड़ा सा मारिया करेगी, थोड़ा सा जैद के सपोर्ट किया है, बाकी खुद करूंगी। दुख से बोली। माँ ने खाना सामने रख दिया। बेचारे जैद को क्यों तंग किया? इसे तो जॉब पर जाना होता है। यूनी के बाद उसे घूर कर बोली। वो प्लेट में चमचा हिलाने लगी। इसने खुद कॉल करके पूछा था कि हेल्प चाहिए या नहीं। फिर मैंने मना तो नहीं कर सकती थी ना। मासूमियत से बोलती खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई। सपूही बेगम को जैद की दानेन के लिए पसंदीदगी का कुछ कुछ अंदाज़ा तो था और वो इन्हें भी पसंद था। काफ़ी सुलझा हुआ लड़का था। मामा, मैं सोच रही हूँ बॉब कटिंग करवा लूँ इस बार। झुंझलाते हुए अपने लेयर्स को पीछे करती बोली, मगर वो फौरन टोक गई। सोचना भी मत, अब बालों को हाथ लगाने की बारी नहीं।
समझ आई? वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। डांटी हुई उठ खड़ी हुई। इन्हें सख्त छेड़ थे इसके बाल कटवाने से। क्यों भाई? उसने परेशानी से कहा। इसे बचपन से छोटे बाल पसंद थे, इसलिए हमेशा कोई ना कोई कटिंग करवा कर रखती थी। बस कर दिया ना मैंने मना, और ये बर्तन धोकर निकलना किचन से। उसे सख्ती से कहती किचन से निकल गई, जबकि उसके मुंह के जाविये मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुके थे, क्योंकि घर के कामों से तो इसे वैसे ही मौत आती थी। बस कभी कभी मूड में होती तो चाइनीज डिशेस बना लेती थी। वो तेजी से क्लासरूम की जाने बढ़ रही थी। आज फिर लेट हो गई थी। अगर किसी और टीचर का पीरियड होता तो खैर थी, मगर मसला ये था कि ये सर तैमूर का पीरियड था। जब भी कोई पीछे से गुजरता इसके कंधे से टकराया। आउच! तकलीफ से कंधा पकड़ा। बैग नीचे गिर चुका था। ओह, आई एम सो सॉरी। आपकी लगी तो नहीं? ग्रीन कमीज शलवार पर दुपट्टा ओढ़े ग्लासेस लगाए लड़की ने परेशानी से पूछा। इतनी जोर से लगी है। घूरते हुए इसके हाथ से बैग लिया। आई एम सॉरी वंस अगेन। एक्चुअली मेरा आज फर्स्ट डे है और मैं आज ही लेट हो गई। घबरा कर बोली तो दानेन को भी इस पर तरस आ गया। कोई बात नहीं, तुम्हारा तो फर्स्ट डे है, मेरा लास्ट डे भी हो तो शायद मेरी जल्दी आंख ना खुले। हंसते हुए इसके साथ चलने लगी। क्या नाम है आपका? उस लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। दानिन हसन, बीबीए थर्ड ईयर। तेज तेज चलते हुए बोली तो लड़की एकदम रुक गई। इसका मतलब मैं सही बंदी से टकराई हूँ। इसके पुरजोश अंदाज में कहने पर दानियल ने न समझी से उसे देखा। अरीबा यूसुफ, बीबीए थर्ड ईयर। चहक कर बोली। वो भी मुस्कुरा दी। ऐसी बात है तो कदमों की स्पीड पर आओ, ऑलरेडी हम 10 मिनट लेट हो चुके हैं, क्योंकि जिस हिटलर का सर का पीरियड है ना, हमें घुसने भी नहीं देंगे। बुरा सा मुंह बनाकर बोली। वो दोनों तेजी से क्लास की तरफ बढ़ गई। मैं कम इन सर? तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मगन देखकर दोनों एक साथ बोली। सर तैमूर ने मुड़कर इन्हें देखा, फिर टाइम को। नो, सख्ती से कहा, मगर साथ में घबराई हुई लड़की को देखा। न्यू एडमिशन कम इन। अरीबा एक नज़र दानियल को देखकर क्लास में दाखिल हुई, जबकि वो बाहर ही खड़ी रही। सर, अरीबा यूसुफ। उसने जल्दी से अपना तारुफ करवाया। इट्स योर फर्स्ट डे, दैट्स वाई इट्स लास्ट वार्निंग फॉर यू। वरना सेकेंड टाइम ऐसा हुआ तो मिस हसन की तरह पूरा पीरियड बाहर गुजारना पड़ेगा। उसने एक नज़र दानेन पर डाली, जो कंग खड़ी थी, और उसे सीट पर भेजकर दोबारा क्लास स्टार्ट कर दी। सब स्टूडेंट्स के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। पूरी क्लास को एक घुरी से नवारती साइड पर हो गई। या अल्लाह, इनकी कार हमेशा के लिए बंद कर दे। दिल ही दिल में बददुआएं देती क्लास के सामने बनी ग्रिल से टेक लगाकर खड़ी हो गई। पीरियड खत्म होते ही अभी पूरे 45 मिनट थे। दानिन दानिन हसन, मिस अमारा ने अपने ऑफिस में आपको बुलाया है। पियून ने करीब आकर बोला तो उसने हैरत से उसे देखा और फिर सर हिला गई। ये मैम अपनी क्लास नहीं ले रही क्या आज? पियून के जाने के बाद टाइम देखकर सोचा, फिर एक नज़र अपनी सड़ी हुई क्लास और इसके सड़े हुए टीचर को देखा, जो आपस में मगन थे। वो भी तपती हुई वहां से निकल गई। मैं आई कम इन मैम? दाखिल होने से पहले पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर अंदर बुला लिया। आओ दानिन, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मगर इस वक्त तो तुम्हें क्लास में होना चाहिए था। वो सामने बैठी तो उन्होंने हैरत से पूछा। जी, बट लेट हो गई, इसने सर ने क्लास अटेंड नहीं करने दी। इसके दुख से बताने पर वह मुस्कुरा दी। हाँ सर, तैमूर इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। मुतासर कुन अंदाज में बोली। वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। मैम, आपने बुलाया था मुझे? उसने याद आने पर जल्दी से कहा। हाँ, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आप एज असिस्टेंट मेरे साथ काम करें। मुस्कुराते हुए वो बोली। वो हैरानगी से इन्हें देखने लगी। मैं आई मीन मैं कैसे करूँगी? परेशानी से कहा। वो इसकी फेवरेट टीचर थी। 1 साल के अरसे में वो हर स्टूडेंट के दिल में घर कर गई थी, मगर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर कुछ हिचकिचा रही थी। आप जैसे जीनियस स्टूडेंट से मुझे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। नाराज़गी से बोली तो वो एकदम गड़बड़ा गई। नहीं मैम, मेरा मतलब है आपके साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बट मसला मामा और भाई का है। पता नहीं वो परमिशन देते भी हैं या नहीं। लब काटते हुए बोली तो वो हंसी। कोई मसला नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप घर वालों की ओपिनियन को हमेशा अहमियत देती हैं। बिल्कुल, बात करें इनसे। कब तक का वक्त है आपके पास? इनके इत्मीनान से कहने पर थैंक्स कहती ऑफिस से निकल गई। असद भाई और मामा को कायल करना भी एक बहुत बड़ा मसला था।
यस बाजी जी, क्या लेंगी आप? कैंटीन के वर्कर ने इन दोनों को देखकर पूछा। उन्होंने ताज्जुब से देखा। नए हो क्या? दानियल ने घूर कर देखा। जी बाजी, बस कल ही हैदराबाद से आया हूँ, मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया। शक्ल से तो हमसे भी डबल उम्र के हो और बाजी कह रहे हो। मारिया ने चिढ़कर कहा तो वो एकदम गड़बड़ा गया। सॉरी जी, मैडम जी, क्या लेंगी? माजरत करते जल्दी से बोला। 2 दही बड़े की प्लेट और कोल्ड ड्रिंक। मारिया ने ऑर्डर देते दानियल को देखा जो कुछ उलझी हुई लगी थी। तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ गुम हो गई? उसे हिलाकर पूछा। मैम अमारा मुझे एज अ असिस्टेंट रखना चाहती हैं, उसने परेशानी से बताया तो मारिया ने हैरत से उसे देखा। वेटर सामने ही खड़ा प्लेटें बना रहा था। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मारिया ने जैसे इसकी कमर पर मातम किया था। हाँ होगी, मगर मामा और भाई पता नहीं मानेंगे भी या नहीं। दही बड़े की प्लेटें और कोल्ड ड्रिंक्स उठाकर एक चेयर पर आ गई। मान जाएंगे, टेंशन मत लो। उसे तसल्ली देकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। तभी येलो टी शर्ट और ब्राउन जीन्स में कंधे पर बैग डाले सुबह से जैद भी वहीं चला आया। क्या हाल है? इसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। नजरें इसके मुखड़े पर थी जो चाट खाने में मगन थी। लाइट पिंक टॉप और वाइट जीन्स पर लापरवाही से वाइट स्टोल डाले ऊंची सी पोनी टेल बनाए चेहरे पर आने वाली लटों को बार बार पीछे कर रही थी। वो बहुत हसीन ना थी। मासूम से गंदमी चेहरे पर छोटी सी तीखी सी नाक जिस पर ज्यादातर गुस्सा ही रहता था, मगर इसकी मोटी मोटी गुसाली आंखें ऐसी थी कि जो किसी को भी अपने शहर में जकड़ने का फन जानती थी। ठीक है, तुम सुनाओ, कैसे फुर्सत मिल गई आज? दानियल ने घूर कर पूछा तो वो नजरें फेर कर मुस्कुरा दिया। तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट करता फिर रहा था। फाइल निकाल कर उसे दी तो वो दानियल खुशी से खिल उठी। शुक्र है तुम किसी काम तो आए, शरारत से बोली। मारिया हंसती थी जबकि जैद ने घूर कर उसे देखा। हाँ, मेरी कदर तो तब होगी तुम्हें जब सर तैमूर मजीद एक हफ्ता तुम्हें क्लास से बाहर रखते होमवर्क कंप्लीट ना करने को। छेड़ते हुए बोला तो दानियल के मुंह में कड़वे बादाम घुल गए। नाम न लो इनका मेरे सामने, बिल्कुल ही खरदमा आ गए। सिर्फ 10 मिनट तो लेट हुई थी मैं, खुर्राते हुए बोली। मारिया को सुबह वाली इसकी शक्ल याद करके दोबारा हंसी आ गई। जैद यकीन करो, जब अरीबा को सर ने आने की परमिशन दी तो इसकी इतनी सी शक्ल निकली हुई थी। खिलखिलाते हुए जैद को बताया तो ना चाहते हुए भी जैद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि दाने इनके तन बदन में आग से लगी। अगर ये तुम्हारे दांत अंतर ना हुए ना तो कसम से तुम्हारे सर तैमूर की इन्हीं के सामने ले जाकर मारूंगी, अपना बैग इसके कंधे पर मारते हुए बोली। मारिया को बमुश्किल अपनी हंसी रोकनी पड़ी। वैसे ये यूनी की लड़कियां पागल हैं, खाम ख्वाह ही नहीं सर पे चढ़ी जा रही, जैद ने चिढ़कर कहा। वो भी किसी से इनकी लुक्स और काबिलियत के किस्से सुनकर तंग आ गया था। ओ हेलो, वो हैं ही इस काबिल के हर कोई इनके गुन गाए। मारिया तो जैसे मैदान में उतर आई। दानियल ने चिढ़कर उसे देखा, जबकि जायद दाना इनके तासुरात देखकर इत्मीनान का सांस लेता उठ खड़ा हुआ। चलो फिर मिलेंगे, मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना है, तुम्हारा असाइनमेंट देने आया था। इसे बताता वो दोनों को खुदा हाफिज कहकर निकल गया। मिस दानियल, पियोन ने करीब आकर पुकारा तो वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। सर तैमूर ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है, अभी। पियोन के पैगाम पर दानियल ने परेशानी से देखा। क्यों? बैग में असाइनमेंट रखते घबरा कर बोली, मगर वो नहीं मालूम कहकर वापस मुड़ गया। ये ज़रूर असाइनमेंट के लिए बुलाया है, मुझे पक्का यकीन है। वो उसे अपना बैग उठाते बोली। जरा वो भी देखना चाहते होंगे कि तुमने कल पूरा दिन बकरियां चराई हैं या कुछ पड़ा भी है, छेड़ते हुए बोली। उसने घूर कर उसे देखा। बकवास मत करो, समझी? तब कर कहती कैंटीन से निकल गई। सर तैमूर के ऑफिस के करीब आई तो वही वेटर उनके ऑफिस से निकल रहा था। एक मुफ्त मशवरा दूं? तानेन उसे रोककर बोली तो वो हैरत से उसे देखने लगा। तुम नए हो, इसलिए बता रही हूँ, दूर रहना इनसे, वरना 2 मिनट चार्ट लेट होने पर पूरा दिन तुम्हें ऑफिस से बाहर खड़ा रखेंगे। राजदारी से मुखलिसाना मशवरा दिया। वो कुछ देर तो उसे देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। नहीं, सर ऐसे तो नहीं लगते। वेटर ने इनकी साइड ली तो दाने ने घूर कर देखा। तुम्हें ज्यादा पता है, एक तो मुफ्त मशवरा दे रही हूँ। मुझे पता है, वो थोड़े गुस्से से कहती आंखों और शहादत की उंगली को सर के पास ले जाकर घुमाते ऑफिस में घुस गई, जबकि वो हैरान और परेशान सा खड़ा रह गया। मैं आई कम इन सर? ऑफिस में दाखिल हुई तो सिगरेट और कलोन की मिली जुली महक ने इनका इस्तकबाल किया।
وہ سامنے ہی بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آپ آلریڈی اندر آ چکی ہیں مس حسن، لیپ ٹاپ پر کام کرتے ایک نظر اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولے۔ دانائن یکدم گڑبڑا گئی اور خاموشی سے ان کی ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ نے بلایا تھا سر، اسے کام میں لگا دیکھ کر وہ چڑھ کر بولی۔ اسائنمنٹ رکھیں اور جائیں، اسپاٹ لائٹ میں بولے تو وہ بھی طنزیہ انہیں دیکھ کر بیگ سے اسائنمنٹ نکال کر ٹیبل پر رکھ کے باہر نکل گئی، جبکہ انہوں نے پرسوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھا تھا۔